साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। Last session we have not completed the English version of it. So we'll take the English version so that it will be a revision also. Plus you get, oh, what happened? Okay. So we'll start with that. Up to what we have completed English? Or we have to start from the beginning? Hello? Nagraj? Yes, Nagraj? Kaka. Yes, Kaka. From which stanza we have to start English? I'm not sure. Jayshree, can you remember? I think it is. No, we completed up till 121. I don't remember which stanza you But English was stopped. not This one, completed. 21, chapter 21, we have to start from beginning, right? English version? Not Yes. from the beginning. Not from the beginning. Chapter 21, English version, we have to start from beginning, right? Let us see. It's not like, let us repeat it. Okay. So, Kaka, you have to start from 40. start from 40. Yes, yes. Okay. No, 43. Sorry, 43. I marked it here. 43. Okay. Chapter So, 21. Sri Thakur was transferred to Kalyan. He met the great devotees of Sai Baba. This is called Sri Nana Sahib Chandorkar. And he heard about Sainath from him and decided to see Sai Maharaj. Next day, Nana Sahib Chandorkar had an opportunity to go to Shirdi. Sri Chandorkar insisted Sri Thakur to join him. Chandorkar expressed his desire to see Baba, stay at Shirdi for a day or two, and then return to Kalyan. But same day, there was a hearing in Thane Civil Court, and Sri Thakur was asked to appear before court. So he could not accompany Chandorkar. Nana Sahib Chandorkar was insisting, come with me, Sai Baba will take care of that case. Visit to Sai Baba visit to Sai Baba is more important than the case. But the Thakur did not agree. He could not reconcile to remain absent from the case. After all, who can change the destiny? All obstacles are set aside if one has sincere desire to see Sai Bhagavan. This experience was also told by Sri Nana Sahib Chandorkar. But Sri Thakur got confused. The case should be finished first, and he was feeling that was his feeling, and there is no medicine for one's nature. And there is nothing adverse in it because that fellow was very sincere in his job. So he went to Thane and Chandorkar started to Shirdi. From here we are starting. Nana Sahib returned after visiting Lord Sai. Something else happened here.
From this stanza, we have to start. असो मग ते ठाण्यास गेले, चांदोरकर शिर्डीस निघाले, दर्शन घेऊन परत फिरले, नवर वर्तले इकडे पै. खैर मिस्टर ठाकुर जो विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर जो है उनको जो थाना में, थाना डिस्ट्रिक्ट जो थाना सिटी है, that is a district headquarter of Thana, and he was posted in Kalyan. Kalyan is a taluka place. So he started towards Thana, and Chandorkar Nana Sahib started towards Shirdi. Chandorkar Sahib visited Shirdi and started his return journey, and some miracle happened here. What happened? क्या हुआ ऐसे? तो वेळी जरी ते हजर राहिले, दावेचे काम पुढे नेमिले, चांदोरकर ही हातचे गेले, खजील झाले अंतरी. Thakur sahib went to Thana to attend that case, but that hearing of that case was postponed. वो जो केस थी, वो केस का मुकदमा जो चल रहा था, दायर किया हुआ था, कोई गवर्नमेंट अपोजिशन कोई स्पेसिफिक केस होगा, वो उसकी जो हियरिंग है वो आगे के लिए मुलतवी कर दी. अभी इनको पछतावा आया. चांदोरकर साहब का सुनते तो अच्छा था, मुकदमा की तारीख भी आगे गई और चांदोरकर साहब के हाथ भी हाथ से निकल गए. विश्वास ठेविता बरे होते, चांदोरकर सवे नेते, दर्शनाचे कार्य उरकते, स्वस्थ चित्ते शिर्डीत. अरे चांदोरकर साहब के कहने पर अगर मैं विश्वास रखता तो ये बात बहुत लाभदायक होती मेरे लिए. उनके साथ चले जाता, बाबा का शांति से दर्शन हो जाता, क्योंकि बाबा के वो चाहते हैं, और बिना किसी प्रयास से मेरा बाबा का दर्शन हो जाता. वो रह गया. इधर मुकदमा भी नहीं चला. दाव्या परी दावा राहिला, साधू समागम ही अंतरला, उठाउठी निश्चय केला, जावयाला शिर्डीस. अरे यार, इधर मुकदमा भी रह गया. और पूर्विल प्रत्यंतरे, दर्शन काम करिता करे, विघ्न हे सरे बाजूला. दैट इज वी हैव कंप्लीटेड. ओके, नाउ let us start from 49. नानासाहेब चांदोरकरे, कथिली पूर्विल प्रत्यंतरे, दर्शन काम दरिता अंतरे, विघ्नते सरे बाजूला. अभी अगर किसी को साईं भगवान के दर्शन लेने की तीव्र इच्छा हो गई है, तो बाबा अपने आप उसके रुकावटें, उसके मार्ग में आने वाली रुकावटें शिरडी जाने के लिए वो खुद ही क्लियर कर देते हैं. ये नाना साहब चांदोरकर का निजी अनुभव था, उनकी अनुभूति है. ये उन्होंने उनको बताया ठाकुर साहब को, देखो आपको अगर सही इच्छा है तो मेरे साथ चलिए, वो मुकदमा का वो सब बाबा देख लेंगे, डोंट वरी. परिना विश्वास जीवा, करीतील काय निज स्वभावा, म्हणती आधी घोर चुकवावा, निकाल लावावा दाव्याचा. बोले नहीं, पहले मुकदमा होना चाहिए, उसके बाद हम जाएंगे, शिरडी जाएंगे, क्योंकि पहले काम होना जरूरी है. असो मग ते ठाण्यास गेले, चांदोरकर शिर्डीस निघाले, दर्शन घेऊन परत फिरले, नवल वर्तले इकडे पै. सो वहां से वो ठाना के लिए निकल गए ठाकुर साहब, और नाना साहब चांदोरकर शिरडी के लिए निकल गए. वो वहां का दर्शन लिया शिरडी का, वो अपने रिटर्न जर्नी के लिए वापसी यात्रा के लिए निकल गए वहां से. इधर एक अचरज हुआ, एक लीला घटित हुई. क्या घटित हुई लीला? वेळी जरी ते हजर राहिले, दाव्याचे काम पुढे नेमिले, चांदोरकर ही हातचे गेले, खजील जाहले अंतरी. पछतावा हुआ उनको, क्योंकि जो मुकदमा हाजिर करने के लिए वो उनको जो रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे कोर्ट में, उसको वो तारीख मुलतवी की गई, पोस्टपोन की गई आगे.
अगली तारीख दी गई। चांदोरकर के साथ जाते तो अच्छा था, वो भी गया और ये भी मौका गया। चांदोरकर साहब बोले थे हालांकि मुझे कि चिंता मत करो, बाबा की दर्शन लेने की आपकी तीव्र इच्छा है तो चलो आप, लेकिन मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं रखा। विश्वास ठेविता बरे होते, चांदोरकर सवे नेते, दर्शनाचे कार्य उरकते, स्वस्थ चित्ते शिरडीत। उनके ऊपर विश्वास रखते तो अच्छा था, शांत में शांति से, बहुत बिना किसी प्रयास से, बिना किसी रुकावट से बाबा का दर्शन हो जाता, क्योंकि चांदोरकर जी साथ में थे और वो उनके बहुत ही हार्डकोर भक्तों में है ना। लेकिन वो भी निकल गया। दाव्या परी दावा राहिला, साधू समागम ही संतरला, उठाउठी निश्चय केला, जावयाला शिर्डीत। अब कोर्ट का मुकदमा वैसा ही रह गया। संतों का सहवास जो होना था, उनके जो दर्शन होने थे वो भी रह गए। उन्होंने निश्चय किया अभी हमें शिरडी जाना है, तो शिरडी जाने के लिए निकल गए। न जानो मी शिर्डीस जाता, समय नानांची भेट होता, स्वये निर्मितील साईनाथा, आनंद चित्ता होईल। न जानो चांदोरकर जी वहीं मिलेंगे, जाएंगे तो वो खुद ही अपने बाबा के मुझे बिना किसी प्रयास के दर्शन दिलवा देंगे और मुझे बहुत आनंद होगा और मैं चलो जल्दी निकल जाते हैं। गए शिर्डी। शिर्डीस नाही कोणी परिचित, तेथमी सर्वथैव अपरिचित, नाना भेटता होईल उचित, जरी क्वचित योग तो। अब चांसेस नाना के वहां रहने के तो बहुत कम लगते हैं, क्योंकि शिरडी में मेरा कोई परिचय वाला पहचानत वाला कोई नहीं है। वहां तो सभी मेरे तो पहचान वाले कोई भी नहीं है उसमें। नाना, अगर नाना की वहां भेंट हो गई, नाना मुझे अगर शिरडी में मिले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, लेकिन लगता तो ऐसा है ही नहीं। ऐसे विचार उनके ठाकुर साहब के दिमाग में आने लगे। ऐसे विचार करीत करीत बैसे लेते अग्निरथात, दुसरे दिवशी पावले शिर्डीत, अर्थात ते नाना ते अर्थात नाहीत। खैर उसी दिन उन्होंने रेलवे से जाना तय किया, रेल से, और दूसरे दिन सवेरे सवेरे शिरडी में पहुंच गया। मैंने जैसा सोचा था कि नाना साहब तो निकल गए थे वहां से। जिस दिन ठाकुर साहब शिरडी जाने के लिए निकले, उसी दिन नाना साहब वापस गए थे। हे जे दिनी जावया यावया निघाले, नाना ते दिनी जावया गेले, तेने ते बहु हताश झाले, अति हिरमुसले मनात। बहुत थोड़ा सा दुख हुआ उनको, बुरा लगा कि अरे यार, नाना साहब अगर मिलते तो अच्छा था। मैं जिस दिन निकला उसी दिन नाना यहाँ से निकल गए, एक दिन का फर्क हो गया। अगर नाना एक दिन रुक जाते तो बहुत ही आनंद हो जाता मुझे। क्यों? क्योंकि नाना साहब के उपस्थिति में मेरा दर्शन बहुत अच्छा हो जाता बाबा का। तो इसलिए वो थोड़ा सा मायूस हो गए, निराश हो गए थोड़े। असो मग तयास तेथे भेटले, तयांचे दुसरे स्नेही भले, तयांनी साईंचे दर्शन करविले, हेतु पुरविले मनाचे। फिर क्या हुआ, सौभाग्यवश उनको उनके एक पुराने दोस्त वहां मिले। उस दोस्त के माध्यम से उस दोस्त ने साईं बाबा का दर्शन करवा दिया, और जो हेतु था, जो उद्देश्य था ठाकुर साहब का, वो सफल हो गया। दर्शने पायी जळले चित्त, गातला साष्टांग दंडवत, शरीर झाले पुलकांकित, नैनी श्रवत परिमाश्रु। क्या बात, ऐसा होता है, अष्टभाव जागृत होते। जिस भावना से, जिस इच्छा से आप चाहते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत दिन के बाद ससुराल में रही हुई लड़की अगर मायके जाती है तो पहले वो आनंद के आंसू आ जाते हैं उसके, मेरी माँ मिलने वाली है, मेरे पिताजी मिलने वाले हैं। बहुत दिन के बाद बाबा के दर्शन के लिए अगर जाना है तो दिल भर आता है।
मैं कोरोना में जा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जा नहीं पा रहे हैं, बहुत दिन हो गए बाबा को मिला नहीं हो, 2 महीने के ऊपर का, 2-3 महीने के ऊपर का काल हो गया। तो वो एक खींच, एक कशिश लगी रहती है। अभी साई दर्शन वे पहली बार जा रहे ठाकुर साहब, लेकिन आध्यात्मिक अगर अंतकरण है आपका तो वो खींच, वो आर्तता, वो आपको उनके चरणों में ले जाती है। दर्शन लेते ही बाबा के होकर बैठ गए ठाकुर जी, ठाकुर साहब विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर। साष्टांग दंडवत यानी पैरेलल टू द फ्लोर, वो पोर्ट्रेटेड दर्शन ले लिया। बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। चोरकर जी को जैसा हुआ था वैसे उनको आनंद हो गया, बहुत फूले न समाये बाबा का दर्शन हो गया। और वो भी देखिए, वो अच्छे करीबी दोस्त वो वहां मिले, चांदोरकर जी नहीं मिले। चांदोरकर जी मिलते तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उनकी कमी मेरे दोस्त ने पूरी कर दी। आंख से आंसू आने लगे, बाबा के दर्शन। क्यों होता है ये? क्यों होता है? पहली बार जा रहे हैं ठाकुर जी, जरा सोचिए, विनायक ठाकुर जी पहली बार जा रहे हैं। और वो अप्पा महाराज ने बोला था, जब ऐसे नॉर्थ की तरफ तू चले जाएगा तो तेरे गुरु जी तेरे गुरु नियत गुरु तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक अंदर की एक ऐसी एक खींच, लगाव, वो वहां तक आपको ले जाता है। एंड वंस यू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग्स व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, वो एक भावना जागृत हो जाती है। आई गॉट फाइनली व्हाट आई वांटेड, आई गॉट फाइनली, मैं जिसकी तलाश में था आज तक, वो तलाश मेरी खत्म हो गई यहाँ ये चरणों में आकर। उनको लगा यही है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। आंसू बहने लगे। बाबा अपने भक्तों को, जिनको वो बुलाना चाहते हैं, बिल्कुल बुला लेते हैं और बुला लेके अपना बना के रख देते हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं बहुत सालों भर से दूर हूँ, दूर दराज वेस्टर्न कंट्री में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ और मैं जा नहीं पा रही हूँ और जा नहीं पा रहा हूँ। बाबा उधर ही है जहां साई सच्चरित का पट, आगे 35th चैप्टर में आप सुनेंगे, जहां साई सच्चरित का पाठ होता है। आफ्टर व्हाट इज साई सच्चरित? साई सच्चरित इज ए लिटरेचरी स्टैचू ऑफ बाबा, वांग्मय मूर्त है ये। तो जहां साई सच्चरित वहां बाबा तो है ही है। आंख से आंसू न लगे, आने लगे, अष्टभाव जागृत हो गए ठाकुर जी के, ठाकुर साहब के। मगते होता क्षणिक स्थित, थोड़े से अपने आप में आके गए, वो जो भावनाओं का जो भर था वो थोड़ा कम कम होते गया। और बाबा उस वक्त उनको क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। त्रिकालन्य मुख करुणी स्मित, त्रिकालन्य जिनके त्रिकाल का ज्ञान होता है, जिनको सभी काल में उनका वास होता है, सभी काल की सब घटनाएं उनको मालूम होती है, खबर होती है जिनको, ऐसे साईनाथ महाराज सुहास्य वदन, मंद स्मित कर कर, प्रसन्न होकर क्या कहा उन्होंने विनायक ठाकुर जी को, ध्यान से सुनिएगा। सावचित्त ते परिसा, ध्यान से सुनिएगा। कानडी अप्पाचे ते सांगणे, जैसे रेडिया संगे घाट चढणे, ऐसे ना येथील सोपे चालणे, अंग चिजविणे अनिवार्य। सुनिए, आपको कानडी अप्पा ने, यानी अप्पा महाराज जो बेलगांव के नजदीक वो जो कापूस गांव में मिले थे, उन्होंने जो निश्चल दासकृत विचार सागर जो ग्रंथ दिया था, वो जो है
उन्होंने क्या कहा था वो जरा याद रखो। मनी, मनी बेटा जा, निकल जाए इधर से, प्लीज प्लीज। तो रेडे के ऊपर वो जो भैंसा लाया था, भैंसे के ऊपर जो नानी घाट चढ़ के गए थे, वहां से तो उनका तबादला हुआ, ट्रांसफर हो गया ना कल्याण में। तो वो जो उसको जो वाहन बनाया था वो भैंसे को, और वहां से पीठ दुखने लगी थी, पूरी हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां पूरी ढीली हो गई थी, वो जो चढ़ के गए थे। वो भी एक बार आसान हो सकता है, वो भी एक बार आसान हो सकता है। लेकिन कानड़ी अप्पा का जो बोलना था ना कि भैया तू उत्तर को चले जा, और वो नानी घाट तू चढ़कर आया था ना, वो आसान है। जैसा वो चला, इतना आसान यहाँ का चलना नहीं है। यहाँ बहुत दुस्तर रास्ता है, ये बहुत कांटो भरा रास्ता है, बड़ा ऊंच नीच है, ऊबड़ खाबड़ है। तो आसान काम है भाई, यहाँ चलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पहले पूरा अपना जो बदन है वो सेवा में खिंचाना पड़ता है। पूरा अपना जो शरीर है, तन मन धन से सेवा में लगना पड़ता है। उसके बाद आपको वो जो इच्छित फल है वो प्राप्त होता है। करनी पड़ता खुनीची अक्षरे, अंतरंग अधिकची गहिवरे, पूर्वील सत्पुरुष वचन खरे, प्रत्यंतरे ठरले के। अरे कानपुर वो कनेक्टिविटी हो गई ठाकुर साहब को। अरे बेलगांव में वो जो संत महंत मुझे बोले थे, उन्होंने बोले थे ये विचार सागर ग्रंथ पढ़ने का है, ये हाथ में है, तेरा कल्याण हो जाएगा और आगे नार की तरफ तो चलते जाएगा। तब जो है वो जो एक मिनट से उनको याद आया, अरे अप्पा महाराज ने मुझे बोला था, वही चीज बाबा ने यहाँ दोहराई है, वही वाक्य उनकी याद मुझे बाबा ने दी है यहाँ। क्या बोले? कानड़ी अप्पाचे थे सांगने। वो कानड़ी अप्पा ने मुझे, कानड़ी यानी संत अप्पा महाराज ने जो मुझे बोला था, बाबा ने यह याद दिलाया है। और उनको और भी उनका अंतरंग भर आया, मन फुलाना समाया। अरे मुझे बोले थे उत्तर दिशा में तू चलते रहेगा, तेरे गुरु सदगुरु तुझे मिल जाएंगे वहां। वो जो सत्पुरुष ने जो वचन दिया था वो यहाँ, उसकी अनुभूति यहाँ हो रही है, उसकी सत्य की प्रतीति यहाँ मुझे हो रही है। मैं बाबा ने वो मुझे अपने अंतर्ज्ञान से, अंतर्यामी ज्ञान से भूतकाल में जो घटना घटी हुई है मेरे साथ, उसकी याद दिली और मेरे दिल को वो छू गई है। मुझे भाग गई यहां पर, क्योंकि मैंने वो अनुभूति ले ली है। बहुत ही दिल भर आया, भावनावश हो गए। पूर्वगत आयुष्य में वडगांव के अप्पा महाराज ने मुझे जो बताया था, वो वचनों की प्रतीति, जो संत पुरुष सत्पुरुषों के वचनों की प्रतीति, अनुभूति मुझे आज यहाँ आ रही है। और उनका गला रूंध गया और आंख से आंसू आने लगे उनके। मग जोडुनिया उभय हस्त, साई पदी ठेविला माथा, म्हणती कृपा करा साईनाथा, मद अनाथा पदरी घ्या। समझ गए, यही है मेरा फाइनल डेस्टिनेशन। हाथ जोड़कर खड़े हो गए बाबा के सामने, साई के चरणों में, साई बाबा के चरणों में अपना माथा टेका और बोले, बाबा कृपा करो मुझ पर, ये अनाथ को अपने चरणों में सहारा दे दो, जगह दे दो मालिक। आपणची माझे महापुरुष, निश्चल दास ग्रंथ उपदेश,
आज मुझे कळता अशेष निर्विशेष सुखबोध। आप ही मेरे गुरु हो, यू आर माय फाइनल डेस्टिनेशन। निश्चय दास लिखित निश्चय विचार सागर में जो मुझे उपदेश किया था, वो मुझे उसका सही मानों में सही अर्थ आज समझ में आया है। सिर्फ क्या बाबा ने क्या बोला, क्या लिखा था, अप्पा महाराज ने क्या बोला था, कानडी अप्पाचे ते सांगणे, क्या बोला था उन्होंने, ये निश्चल दासकृत, ये निर्णय सागर ग्रंथ तू लिख ले, रख ले, उसका अध्ययन कर, उसका पठन कर, उसमें ही तेरा कल्याण है। अब पढ़ तो लिया, उसके सब प्रिंसिपल्स तो गेम ऑफ द, वो जो रूल्स ऑफ द गेम तो समझ में आ गए, पूरा उन्होंने वो अध्ययन तो कर लिया, अध्यात्म क्या होता है और उसका मार्ग कैसा चलना है ये तो समझ लिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल बाबा ने बताया इतना आसान नहीं है। वो बाबा ने, आपा ने बोल दिया, वो सही है, वो कल्याण होएगा, लेकिन उसके लिए सेवा, सेवा किस माध्यम की, अपने आचरण में उसको ढो देने की, उसमें आचरण में वो जो तत्व ज्ञान है, जो बोध दिया है, वो अपने आचरण में लाना चाहिए। इतना आसान नहीं है। Whatever you have gained that knowledge of spirituality, you got to apply it in your personal life. आपके जीवन का वो हिस्सा होना चाहिए। यही तो बाबा ने बोला उनको। आज मुझे उसका अर्थ पता चला, निर्विशेष सुख बोध, सुख किसमें है, स्पेसिफिकली मुझे समझ में गया और मुझे उपदेश मिला है, मुझे वो समझ में आ गया है कि मेरा कल्याण किसमें है। सदगुरु अप्पा महाराज ने जो विचार सागर ग्रंथ में उपदेश किया था, उसका सही मानों में अर्थ आज मुझे समझा है कि अप्पा महाराज ने जो बताया था कि आगे नॉर्थ में तू चलते जाएगा तो तुझे एक महापुरुष के दर्शन होंगे, वो आज अभी मुझे यकीन हो गया है। मुझे पूरा सच्चाई आज उसकी मैं महसूस कर रहा हूं कि खातरी हो गई है मुझे कि मुझे 100% यकीन हो गया है, वही आप मेरे महापुरुष हो। परमानंद, विशेष, सर्वश्रेष्ठ सुख क्या किसमें है, आज आपकी वजह से मुझे समझ में आया है। कुठे वडगाव, कुठे शिर्डी, काय ही सत्पुरुष महापुरुष जोडी, किती ती स्व अल्पाक्षर भाषा उघडी, उपदेश निर्वडी कैसी है। अब देखिए डिस्टेंस, आज तो एक उस वक्त वो महाराष्ट्र बॉम्बे राज्य में था, वो जो है बेलगांव के पास कापूस उड़गांव, वहां के संत महाराज, उन्होंने वो कहाँ है स्थान, शिरडी कहाँ है स्थान, दोनों के बाजू में कितना बड़ा अंतर है, तो भी दोनों जगह स्थित जो महापुरुष है उनका आपस में सूक्ष्म लेवल पर, नैनो लेवल पर, माइक्रो नहीं नैनो लेवल पर होने वाला जो संवाद है, और वो संवाद के माध्यम से जो अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अर्थ उपदेश मुझे दिया जा रहा है, जो बोध मुझे किया जा रहा है, अजीब है सब, अचरज में डाल देता है, स्पीचलेस कर देता है। कहाँ बेलगांव, कहाँ शिरडी, क्या कहा था उन्होंने, यहां आने के बाद मुझे उसकी सब अनुभूति आ रही है। अजीब है सब मिरेकुलस थिंग्स। एक ने क्या कहा, एक म्हणती ग्रंथवाचा, पुढे सुंगम महापुरुषाचा, मग ते पुढील कर्तव्याचा उपदेश साचा करतील। क्या कहा था उन्होंने, ये ग्रंथ तू पढ़ ले, ये ग्रंथ का अर्थबोधन ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर आगे चलकर तुझे महापुरुष मिलेंगे नॉर्थ में चलते चलते, और आगे क्या करना है उसका उपदेश, उसका रास्ता वो महापुरुष दिखाएंगे तुझे और तुझे उपदेश करेंगे। और महाराज ने क्या बोला,
कानडी अप्पाचे ते सांगणे, जैसे रेड्या संगे घाट चढणे, ऐसे न येथील चालणे, अंग झिजविणे अनिवार्य, सेवा कार्य में लगना चाहिए। ये बहुत बड़ा उपदेश बाबा दे रहे हैं। जस्ट महज एक ग्रंथ पढ़कर, सिर्फ बाबा की पहले तो शिक्षा भी कोई नहीं लेते, बाबा का बोध क्या करना चाहते हैं वो भी नहीं, जाते हैं मुहूर्त के पैर ये करते हैं, बाबा मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, एक लिस्ट रख देते हैं, वापस आ जाते हैं, और मुझे मुझ पर बाबा प्रसन्न है। पहले बाबा की शिक्षा क्या है, व्हाट इज हिज आइडियोलॉजी, उनका जीवन ज्ञान क्या है, वो समझने का है। मुरली समझना नहीं है, अपने आचरण में उसको लाना है। बाबा ने खुद कहा है, अंग झिजविने अनिवार्य, भक्ति और सेवा ये अलग नहीं है। सेवा इज ए एक्सटेंशन ऑफ भक्ति, सेवा ये भक्ति का दृश्य स्वरूप है। जो विचारधारा, जो विचार प्रणाली, जो भक्ति बाबा ने हमें प्रदान की है, उसका दृश्य स्वरूप है, एक्चुअल प्रैक्टिकल स्वरूप भक्त सेवा है। और क्या है पहले सेवा, क्या सेवा है, दीन जनों का, दुखितों का, पीड़ितों की सेवा करो। भूखे को रोटी दो, पैसे को पानी दो, जिसको सहारा नहीं है उसको आश्रय दे दो, सहारा दे दो। यही पहली शिक्षा है बाबा की। और उसको एक ऐसे फुलाते फुलाते ऐसा बड़ा स्वरूप दे दो कि सेवा में साईं भगवान स्वयं प्रसन्न होकर हाथ बटाने लगे। स्वयं भगवान साईनाथ खुद बोलने लगे, नहीं मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा भक्त सही रास्ते पर है, उसको मुझे अभी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो संसाधन है, उसकी आपूर्ति करनी है उसके लिए। एंड ही विल गिव यू एवरीथिंग टू यू। आपके नियत में चाहिए, नियत में खोट है तो फिर खत्म, फिर वो कितना भी पढ़ो किताबें, कुछ फायदा नहीं है। नसल्या लागा बांधा काही, कुणी कुठे जात नहीं, नरास काय पशु पक्षाही, न करी कुणाही हर हर। ये पहली बेसिक है टीचिंग, बेसिक टीचिंग है। क्या आपका रिलेशन होने के बजाय आपके दरवाजे पे आया हुआ श्वान, कुत्ता या कोई प्राणी ये भी नहीं आता है, वो ढूंढ के आपके पास क्यों आता है, उसका आपका अनंत जन्मों का कुछ नाता होता है जो आपको पता नहीं है, बाबा को पता है। कोई किसके पास नहीं जाता बिना वजह, आपका कुछ फाइलें दोनों की ओपन रहती है, वो क्लोज करनी होती है। एक दूसरे के प्रति अपना जो कर्तव्य है, जो अधूरा रह गया है कोई किसी जन्म में, वह भी कंप्लीट करना होता है। इसलिए बार बार वो जीवात्मा आपके जीवन में, आयुष्य में प्रकट करते होते हैं। इसीलिए नरास काय पशु पक्षी, अरे नर तो छोड़ो, मैंने इंसान मनुष्य प्राणी तो छोड़ो, पशु पक्षी के बारे में भी किसी को भी दुत्कारो नहीं, लत्कारो नहीं, उसको भगाओ नहीं। आपके जीवन में, आपके मन में देना है दे दे, नहीं देना है मत दो भाई, लेकिन उसको लात मार के भगाओ मत, दुत्कारो मत। नाना साहब चांदोरकर के साथ बहुत ऐसा ही प्रसंग, उन्होंने बाबा ने वो लीला घटित की और उनको बोला, लुक दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ नाना साहब को बता दिया। तो आगे वो स्टोरी है, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन क्या बोला, एक अप्पा साहब ने क्या कहा, निश्चल दासकृत विचार सागर ग्रंथ पढ़ो, उसका अध्ययन करो, उसमें दिखाए हुए जो प्रिंसिपल्स है उसके आगे जब ये तुम प्रिंसिपल समझ लोगे, आगे चलकर एक महापुरुष के दर्शन होंगे तुम्हें, और वो महापुरुष आपको आगे का रास्ता बताएंगे। और बाबा ने किया कहा रास्ता क्या, अंग झिजविने अनिवार्य। जो तूने अभी तक जो पढ़ा है, जो तुझे मालूम हुआ है, वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में
लेकर आओ। मोल्ड दैट ऑल टीचिंग्स इनटू योर डेली रूटीन। अपने कर्म को योग में बदल दे। काम तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को जो योग में बदल देता है वही उपासना और वही आराधना है। हम संसार मार्गी गृहस्थ धर्मी के लिए यही तो मेन चीज है। से दो चीज होती है, वो बहुत हार्ड वर्कर है, बोलते हैं हम। हार्ड वर्कर रहना अच्छा है। हार्ड वर्कर तो रास्ते पर का जो ठेला चलाने वाला वो भी हार्ड वर्क करता है। What you have to do is a bhaktimay, intelligent hard work. Find out the way how you will ease the life of others. परमेश्वर ने आपको जो मौका दिया है, जो कि अपॉर्चुनिटी दी है, अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से आप ऐसा आयाम दो कि इसकी वजह से काम करते करते भी आपको लोगों के जीवन में आनंद ला सको। नहीं तो क्या होता है मालूम है, कुछ लोग रोजमर्रा की जिंदगी, ऑफिस, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, बस जाके बैठो 10 से 5 अपना वादी करते रहो, आ जाओ। मोले घातले रड़ाया, नाही आंसू नाही माया। पैसा देकर जिसको रोने को लगाया, जिसको लगाते हैं, रुदाली में है ना, आपने देखा, पैसा मोल देकर जिसको रोने के लिए बुलाएंगे। ये कुछ लोग अपने दिल से जो काम नहीं करते हैं, कामचोरगिरी करते हैं, उसको देखते हैं कि काम को कैसा टाले, उनके लिए है। रैदर आपको जो काम सौंपा है प्रकृति ने, भगवान ने, उसको आनंद में परावर्तित करो, आनंद देने का काम करो। योगः कर्मेषु कौशल्यम, यही तो है। अपने कर्मों को योग में बदल देना, भक्ति करना यही तो है। भक्ति करना यानी कोई माला फेरते नहीं रहना, जब तक करते नहीं रहना। भक्ति करना यानी भक्ति के सही माने हमारे सदगुरु ने हमें जो बताया है, अपने जीवन प्रणाली का एक हिस्सा, अपने बिहेवियरल पैटर्न का एक हिस्सा, अपने निजी कर्मों का एक हिस्सा बना के रखना है। और यही बाबा ने कहा है, यही कहा उन्होंने। दैवयोगे ते ही भेटले, तेच ते हे खुना ही पटविले, परी ते एकाचे वाचिले, दुजी आचरिले पाहिजे। भाग्यवश, सौभाग्यवश वो महापुरुष के भी दर्शन हो गए। परम भाग्य से वो महापुरुष के आज दर्शन हो गए। और पहले जो मुझे महापुरुष सत्पुरुष बेटे थे, मिले थे, वो जो उनकी और मेरी जो पूरा मेरे गतायुष्य में, भूतकाल में जो भेंट हुई थी, उसकी मुझे याद देकर अनुभूति भी दे दी। और एक ने कहा, क्या कहा, पढ़ना चाहिए, ज्ञान हासिल करो। और दूसरा क्या किया, वो वचनों का पालन करना चाहिए। एक ने कहा ज्ञान ले लो, दूसरे ने कहा वो ज्ञान के ऊपर अपना कर्म करते रहो, और उसी हिसाब से अपना आचरण रखना है। आगे साईनाथ महाराज उनको क्या कहा, कुछ समझ लीजिए। तयासी म्हणती साईनाथ, आप्पांनी सांगितले ते यथार्थ, परी जेव्हा ते येईल कृतीत, पूर्ण मनोरथ ते होती। हाँ, ये सही माने। देख बेटा विनायक, अप्पा महाराज ने तुझे बोला था, बराबर बोला था, यथार्थ बोला था, सही बोला था, उचित बोला था। लेकिन जो तुझे जो बोला था, वो प्रत्यक्ष अपने कर्म के अंदर, प्रत्यक्ष अपने कृति में जब तक तू लाता नहीं है, आचरण का अपना एक हिस्सा बनाता है नहीं है, तो वो व्यर्थ है। जब तू लाएगा तब तेरी पूरी मनोरथ पूरे हो जाएंगे, तेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, तेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। So what you have to do is, whatever the principles which you are that विचार सागर में, या हमारे लिए हमारे बाबा ने हमको जो दिए है, हमारे आचरण के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से हमें क्या करना है,
लोगों के जीवन में, खासकर जो डाउन ट्रोडन है, प्रारब्ध के भोगों से अपनी जो भोग भुगत रहे हैं, उनके जीवन में खुशियां लाना, यही हमारा निजी कर्तव्य, यही है सेवा, यही है भक्ति। ये जो अध्याय हमें समझाया जा रहा है, इसके लिए समझाया जा रहा है। निश्चल दास विचार सागर, वडगावी भक्तार्थ झाला उच्चार, काळे ग्रंथ पारायणानंतर शिर्डीत आचार कथियेला। निश्चल दास कृत जो विचार सागर ग्रंथ पढ़ने के लिए वडगांव कापूस के जो अप्पा महाराज ने कहा था, उन्होंने किया था कि ये पढ़ो, इसमें आपका कल्याण है। और कुछ काल के बाद जब वो ग्रंथ के पारायण किए गए, उसमें एक्सपर्टिज्म हासिल, ये पारायण होना है, एक्सपर्टिज्म हासिल करना। जब वो पूरा उसका जो ज्ञान है अंदर ढल गया, अंदर क्या बोलते, सिप होते गया, अंदर अपना जीवन का एक हिस्सा बन गया, और शिरडी में वो क्या बोला, अभी इसके साथ इसके अनुसार तुझे आचार करना है। शिरडी तो आचार कथियेला, उसके हिसाब से तुझे कैसे आचरण करना है, अपने कर्म कैसे करना है, ये मुझे शिरडी में जाकर पता चला। करावा आदि ग्रंथ श्रवण, त्याची चमक करावे मनन। हाँ, ये सिग्नेचर स्टैंजा है, ये वो भी है, पढ़ो आप। करावा आदि ग्रंथ श्रवण, त्याचे चमक करावे मनन, होता पारायण अवतरण आवर्तन निधिध्यासन होत से। हाँ, बहुत बढ़िया। दिस आर स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। कैसे? पहले आप ग्रंथ का श्रवण कीजिए, पठन कीजिए, उसको समझ लीजिए। ये साई गीता है, साई सचरित, ये साई गीता है, यह आपको समझ लगा है। उसके पहले ये सब पहले सुन लीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, सेल्फ रियलाइज कीजिए, अंतर्मुख होकर, इंट्रोवर्ट होकर उसके ऊपर सोचना चालू कीजिए। चिंतन के माध्यम से, आत्म चिंतन के माध्यम से उसके सही माने समझना चालू कर दीजिए। मनन कीजिए, मनन यानी रिवीजन, उसका क्या कहना, क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कहना चाहते हैं। ये बाबा का जो ग्रंथ है, उसमें ये जो पर्टिकुलर कथा है, ये कथा से मुझे क्या लेना है, सोच लो, सोचते रहो। एंड होता पारायण आवर्तन, ऐसे अनेक बार आप पारायण करते रहोगे। पारायण यानी लोग बहुत आसानी से लेते रहते हैं। पारायण करना यानी बस वो जो कुत्ता पीछे पड़ता है ना, पढ़ते रहो, इधर देखो, आगे देखो, वो देखो, बाद में कितना रह गया अभी। दिस इज नॉट पारायण। Don't do it for reading sake. Don't read it for reading sake. What you have to do? You have to read. Who has told you to complete the chapter? No. 5 स्टैंजा लीजिए रोज का, 10 स्टैंजा लीजिए रोज का, लेकिन वो स्टैंजा ऐसा लीजिए उसका सही मतितार्थ, उसका सही भावार्थ। इस माध्यम से मुझे बाबा क्या कहना चाहते, पूरे दिन तक और रात भर उसको सोचते रहिए। What बाबा wanted to convey me out of this? बाबा मुझे क्या कहना चाहते हैं उसके पीछे, उसका पूरा आत्मचिंतन के माध्यम से, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से अपने आप को रियलाइज करो। किसी के कहने से नहीं होगा, ये किसी के बोलने से नहीं होगा, अपने आप को वो लेना है। और वो लेने के बाद अब वो जो आपको वो जो टेक्निक मिला है, उसको अपने जीवन में उसको कैसे कार्यान्वित करना है, उसमें कार्य में उसको कैसे अपने लेना है, ढाना है, ढोना है उसमें और ढाल लेना है। हाउ वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ इन ग्रास्पिंग और ग्रैबिंग दैट आइडियोलॉजी, टीचिंग्स, प्रीचिंग्स ऑफ बाबा, ये हमेशा सोचना है। ग्रंथ करावा आदि श्रवण,
त्याचे मग करावे मनन, होता पारायण आवर्तन, ऐसे बहुत सारे एडिशन हो जाएंगे। बाबा के पास एक भक्त आए थे, बहुत श्रेष्ठ भक्त, वाडेकर, हरि विनायक हरि वाडेकर, अभी देहांत हो गया उनका 2-4 साल पहले। बहुत ही बाबा के परम भक्त थे, सीनियर मोस्ट स्पष्ट भक्त। हरे भावार्थ साई सचरित को उनका प्रियम्बल मिला है। तो वो जो है, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बाबा ने एक भक्त को बोला था कि जो ज्ञानेश्वरी पढ़ा कर, जब भी आता था पढ़ते जा, रिवीजन पर रिवीजन। फिर वो वापस आया, बाबा क्या करूं, तो उन्होंने बोला बस हो गया, अभी पोथीचे पीठ झाले। बाबा ने क्या कहा, अभी जो तूने ग्रंथ पढ़ कर उसका अभी आटे में गया, मतलब टोटल तूने अभी उसको समझ लिया है। जो ग्रेन्यूल्स है, जो ग्रेन्स है, वो ग्रेन्स का अभी आटा हो गया है, आटा पोथीचे पीठ झाले, अभी ठीक हो गया। अब इसके आगे क्या करना है? पारायण होने के बाद उसके अलग अलग वेरियस एडिशन, वो जो आप रिवीजन करते रहेंगे, उसमें आपको हर एक बार, और साई सच्चरित तो ऐसे रत्नों की खान है, हर एक बार आप पढ़ो तो नया चीज आपको, डायमेंशंस आपको पता चल जाते हैं। तो जब आप इसे आप पारायण पर करने के बाद परायण हो जाओगे, यानी एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें, देन आगे चल के आगे की प्रोसेस होते हैं निधिध्यासन, यानी हम उसका क्या करते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारी, उसका ध्यास लगता है, हम चिंतन करते हैं क्या करना है हमें, वहां से हम हमारी जीवन शैली बनाते हैं। वो नई जीवन शैली, नए वो विचारधारा को लेकर हमारे जीवन में हम ऐसा एक मोड़ लेके आते हैं कि हमारा वो सब विचारधारा उसमें समा जाती है। ये बहुत जरूरी है। हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं। So we'll start with what? English version, okay? So that we'll have continuity. See, Thakur had skill to ride a horse, but the road of Nane Ghat with the buffalo was difficult and he had back pain. He completed job at Junnar and was transferred. He had to leave Junnar. Sri Thakur was transferred to Kalyan. He met the great duty of Sai Sri Nana Sahib Chandorkar and he heard about Sainath from him and decided to see Sai Maharaj. Next day, Nana Sahib Chandorkar had an opportunity to visit Shirdi and Sri Chandorkar insisted Sri Thakur to join him. Chandorkar expressed his desire to see Baba, stay at Shirdi for a day or two and then return to Kalyan. But same day there was a hearing in Thane Civil Court and Sri Thakur was asked to appear before court, so he could not accompany Chandorkar. Nana Sahib Chandorkar said, "Come with me. Sai Baba will take care of that case. Visit to Shirdi, visit to Sai Baba is more important than the case." But Sri Thakur did not agree. He could not reconcile to remain absent from the case. Also, obstacles are set aside if one has sincere desire to see Sai Bhagavan. This experiences was also told by Sri Nana Sahib Chandorkar to Thakur. But Sri Thakur, Vinayak Thakur, got confused. The case should be finished first, and that was his feeling. And there is no medicine for one's nature, and there is nothing adverse about it. So he went to Thane and Chandorkar started for Shirdi. Nana Sahib returned after visiting taking darshan of Lord Sai in Shirdi, and something else happened here. Sri Thakur went to court punctually, but the case was postponed. He could not accompany Chandorkar for Shirdi. He felt ashamed on not listening to him, not listening to Chandorkar.
It would have been nice to believe in him and go to Shirdi and live a visit to Baba peacefully, have a visit to Baba peacefully. The case in the court remained pending. The company of Saint could not get materialized. Immediately he decided to go to Shirdi. Perhaps, maybe Nana Sahib may meet him in Shirdi. He would help me to see Baba or take the darshan of Baba. I would get happiness on seeing Sainath, he felt. Nobody knows me in the Shirdi, and I also don't know about anybody in Shirdi. If I could meet Nana Sahib there, it would be very appropriate and fine for me. He caught the train and reached next day. He reached the Shirdi. His mind was full of negative thoughts, and he could not even see Nana Sahib. The day Sri Vinayak Thakur started for Shirdi, same day Nana Sahib started returning. Sri Thakur got disappointed. He met his old friend in Shirdi, at Shirdi, and he managed to take him to Sai Bhagwan, and thus his desire was fulfilled. On seeing Sai, Thakur became very happy. He prostrated flat on ground in reverent mood. His eyes were full of tears. After stabilizing, the omnipotent Sai Narayan told him smilingly as follows. Listen it very carefully. Here the advice of Papa from Karnataka on your traveling in Nane Ghat on he buffalo does not work. One has to ex- exert himself. What is the use of advice given by Appa of Karnataka unless it is practiced? The incidents of recollected by Baba from his inner knowledge, and that was appeal to his mind, Thakur's mind. His heart swelled with happiness. His throat got choked on the realizing the word of Appa Maharaj in Vadgaon. Then he prayed with folded hands and said, Sainath, kindly bless me and accept this miserable man. Today I have realized the advice in real sense of Vichar Sagar as explained by Sadguru Appa Maharaj. I am confident that you are the great soul as told by Appa Maharaj, and today I have understood the supreme happiness, and you are my that Satpurush. Where is Vadgaon near Bedgaon, and where is the Shirdi? How what see the distance in between two destination, be it two station. It is really astonishing the conversation and advice of these two great souls in subtle form. One great soul advised to read that spiritual book. You will be in contact with another great soul in future path. He will decide your future life. He will confirm. One great soul has told to strictly follow the nectar of words and follow them. Sai Bhagwan told Sri Vinayak Thakur, whatever Appa Maharaj has told is true, but it should be followed by action. Then your job will be performed, and then your aim will be fulfilled. The study Vichar Sagar of Saint Nishal Das was ordered at Vadgaon by Appa Maharaj. And after repeatedly reading for the same, I was told to think, contemplate, and follow it. Was ordered at Shirdi. That was ordered from Shirdi Sainath. Firstly, one should read the book, then think over it. After repeatedly reading and study, the contemplation is completed. We have completed up to 71. We'll take 5 minutes break. And if Virendraji is there,
accept my pranam. I'll take it just few. Namaskar. Yeah, namaskar, namaskar. गिरिधर जी नमस्कार. Please take over. मैं चाह घेतो माझा जरा. 21. It's a beautiful chapter. Seva and bhakti. Bhakti is not separated from seva. Seva is extension of bhakti. And bhakti is not completed. It is not a fulfillment is not achieved unless you do seva. बहुत अच्छा नरेट किया है यहाँ. Thank you. Please give your nectar on it. Orgaga, I would like to say something slightly different Yeah, please. as far as the bhakti part is concerned. See, basically for all Sai devotees. See, only last Wednesday, the Ram Navami had taken place. Last Wednesday was Ram Navami. Uh-huh. So, yeah. So you see, I just had the self-introspection. In our place, normally my mother used to do these things. And I had asked my mother that whatever that you're doing, why is it so? Now, what she was doing, I will tell all Sai devotees. This is also Sai Bhakti, you see. Sai Bhakti need not be, not necessarily always reading Sai Satcharitra, Sai Navavali, Sai Artis. You see, in our house, see, the Indian festivals, they start. Mainly they start from, let's say, Holi Purnima. So in Holi, we used to have Puran Puri. Yeah. Then Holi is followed by Gudi Padwa. So Gudi Padwa, we used to have Srikhand Puri. Then after Gudi Padwa, the next festival will take place Ganesh Chaturthi. So Ganesh Chaturthi, we will have that Rava Ladu and Modak, Modak made out of rice flour. So those Ukadiche Modak, what we call. So we used to have that. Then that is followed by Ram Navami. So Ram Navami, we used to have a Shira. That is a sweet, Shira. Then comes the Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi, we used to have Rava Ladu and Modak. Then, Ganesh Chaturthi, then this Ram Navami, then that comes the Diwali Gudi Padwa. So in Diwali Gudi Padwa, we used to have a Sakari Bhat. Sakari Bhat means Baba used to call it Meete Chawal, Meete. That is a sweet rice. And you see these type of things, different festivals and different so-called sweets. So I used to ask my mother, why is all this different? So she says, I don't know. But what I have done is I have learned from your grandmother, means my grandmother. That is Sita Devi Tarkad, you see. That is her so-called mother-in-law. So then I realized why this mother, my grandmother was doing all this. So it was not necessarily, and they were all homemade. She used to prepare herself, not like today. You see, today everything is coming from ready-made market.
all ladies of the house, they have become lazy. They don't want to prepare. So they buy things from the market. But my grandmother used to prepare herself. And she was obviously not preparing because that used to be always called Naivedya. That Naivedya used to be offered to Sai Baba, you see, and different Naivedya on different festivals. And so this is also a part of Sai Bhakti, you see. This was a Sai Bhakti. And that is what I today have realized. And fortunately, it continues in our house, even as on today. Of course, there are certain things which are not made now in the house. They are bought from the market because the times have changed. But this is the Sai Bhakti, that different Naivedya on different festivals. And of course, the Naivedya is offered to Sai Baba in his silver cup. It used to be always offered. And after that, whenever we will have lunch, we all will eat that. So that we will eat as though this is a Sai Prasad. So this was the ritual that followed, and it continues. So Sai devotees, this is also a part of Sai Bhakti, you see. And I think this kind of thing should continue with all Sai devotion. This is also part of it, and enjoyable. So this was my self-introspection, which I thought I should share with you all. So of course, I cannot force on to you to say that you also follow that same. It is all up to you. But side devotion is like this. Because once they, for them, it was all Tarkat family, their deity was Sai Baba. So whatever they did for him. And as the luck would have it, it is still continuing. This is what I wanted to share with you today. Yeah. Anyone has got anything to say, they can ask. You must remember one thing which is important for today's generation. See, I think when my mother got married, maybe she was hardly 13, 14, 15-year-old. So, because those days were like that. And my dad was just about 23-year-old, like that. So, whatever my mother followed, it was all from my grandmother. Because she started, she used to share her, help her in the kitchen and all those things. So along with the ritual, she prepared, preparing, I still remember, I used to, I had seen her preparing, usually a chicken. I don't know, making Srikhand. If you all, any one of you people have made Srikhand by yourself, it used to be a marathon task. I have seen my mother doing that, but she used to, herself with that saffron color and whatnot. So, and anything, you see. All these, whether it is Shira or Puran Puri or Rava Laddus, all these things. So she used to prepare herself. And of course, she has learned from her
mother-in-law, you see. So she, because from the childhood, I would say she was a child. So she followed that and it continued. But she followed with all these rituals, she followed very strictly. It was fixed. And that is how we also remember today. See, Ramnami means Chira, Holi means Puran Purnima, Gudi Padwa means chicken puri. So, but they were all Naivedya offered to Baba. This is what I had not realized when I was a child. See, today I realized that this was all done for Baba. So this is Sai Bhakti. Sai Bhakti it cannot be explained, you have to. And of course, all credit goes to my mother-in-law because she was a staunch Sai, and she's bound to be that way. So initially it must have been curiosity. Subsequently it turned into Sai Bhakti, you see. And it went on, you see. It went on till her last breath. That much I remember. You see, human being is such, he does all sorts of acts, you see. Good acts, bad acts, all kinds of acts. And not that he necessarily willingly does, but it happens. You see, after all, we are human, so this kind of thing will happen. But what matters is, after we have done any act, if we have a self-introspection, and that self-introspection will tell you that this is not a good thing that you have done. You see, because this is a so-called post-realization of the act. And the moment that realization is there, and you basically, it depends on individual. Many of us, we repent, you see. We repent for the bad act if we have done. And if we does that, if we repent, then I think, of course, I am not sorry to say, but God forgives us. This part is very clear because we have that realization that we have done a bad act, and at least next time we will not do. In future we will not do. Yeah. So this is that is why the self-realization is essential. But after self-realization, we should. Oh, I think power cut is. So we are fortunate. तो पढ़ना चाहिए उसके ऊपर आत्मचिंतन के माध्यम से, सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से उसका जो नेक्टर है, उसका जो इसेंस है, वो समझ लेना चाहिए. समझ में नहीं आता है तो किसी दूसरे माध्यम से भी वो सुन सकते हैं, समझ ले सकते हैं. ओके, और उसके ऊपर फिर निधि ध्यासन, उसका अध्यासन होना चाहिए. अध्यात्म से आराधना. Get whatever the best, up to the best level which you can get out of it. वाचिले ते नाही संपले, पाहिजे ते कृती तो उतरले. या उपड्या घड्यावर तोळे होतले, पैसे झाले ते सकळ. आप सिर्फ पढ़ लेते हैं, ग्रंथ अगर पढ़ेंगे आप, हम सब पढ़ लेते हैं. ये पढ़ लेने ने साई सच्चे का पारायण करना तो साईं बाबा खुश नहीं. This is not the end. वाचिले ते नहीं संपले, ये यहां तक ही नहीं, मतलब इतना ही नहीं है, इसके आगे है क्या.
वो अपने आचरण में लाना है उसे। साईं बाबा कहते हैं, साईं बाबा ऐसा करते हैं, साईं बाबा ऐसा करते हैं, साईं बाबा ने हमको ये सीख दी है, मुंह से बोलना है लेकिन अपने आचरण में नहीं लाना है, क्या फायदा। यानी घड़ा है, घड़ा उल्टा रखिए और उसके ऊपर पानी डालिए तो पानी के अंदर, घड़े के अंदर जाएगा। उपड़ा घड़ा यानी औंधा करके रखा हुआ घड़ा है, उसके ऊपर पानी डाला तो पानी कहाँ जाएगा, बह जाएगा पूरा। ऐसा होगा अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स सब मालूम कर लेते हैं, उचित ज्ञान लेते हैं, लेकिन अपने आचरण में कुछ भी नहीं। जैसे 15-16वें अध्याय में वो जो क्या ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आया था, लो भी नहीं गया है, और इधर बोलने का परोपकार करना चाहिए, मदद करनी चाहिए दीन दुबलों की, गरीबों की, खुद नहीं करना है कुछ भी। हिपोक्रेटिसिज्म वो नहीं करना है। व्यर्थ व्यर्थ ग्रंथ वाचन, हाथी न ये जो अनुभव ज्ञान, ब्रह्म संपन्न गुरु कृपे विण पुस्तकी ज्ञान निष्फल। देखिए, ग्रंथ वाचन जरूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रंथ वाचन करके बस पढ़ लेना कि मैंने 100 पारायण करूंगी या 100 पारायण करूंगा, बाबा मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, नहीं होगे। ग्रंथ वाचन is just a means of communication with and establishing your dialogue with the God. It doesn't mean that you become eligible or become capable of doing bhakti. Remember this. व्यर्थ है, फिजूल है सिर्फ ग्रंथ पढ़कर छोड़ देना। या वो आनंद अलग है कि जब हमें वो समझ में आता है, उसका ज्ञान आता है, और ये बहुत अच्छा है, सिर्फ मुंह तक नहीं, हाथ तक, कृति तक होना चाहिए। हाथी ने ये जो अनुभव ज्ञान है, उसकी अनुभूति हम हमारे कृति में जब नहीं लाते हैं, अनुभूति जन्य ज्ञान के माध्यम से उसको हमारे जीवन में हमें समान ही लेते हैं तब तक। और ब्रह्म संपन्न गुरु कृपे होना, इसके लिए भी गुरु की कृपा होनी चाहिए। आप ब्रह्म संपन्न हो सकते हैं, या ब्रह्म संपन्न सदगुरु की कृपा आपके पर हो जाएगी। जब तक कि वो नहीं होती है, यानी आपके आचरण के माध्यम से, कृति के माध्यम से, जब आप उसको अपने आप को साईं भक्त कहलाने के लायक नहीं होते हो, तब तक ये किताबी ज्ञान फिजूल का है, व्यर्थ है। इस आशय की कथा भी हम सुनने जा रहे हैं। ये अर्थीची अल्प कथा, दाविल भक्तीची यथार्थता, पुरुषार्थाची आवश्यकता, श्रोता निज स्वार्था परिशिजे। सत्य वचन, ये जो सत्य वचन है, इसकी अनुभूति देने वाली एक छोटी सी कथा है, अभी वो हम अभी सुनने जा रहे हैं। भक्ति का यथार्थ स्वरूप, भक्ति का यथार्थ उचित ज्ञान, और आयुष्य का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। आयुष्य का उद्देश्य क्या है? पंच पुरुषार्थ, 4 नहीं है, पंच पुरुषार्थ। पंच पुरुषार्थ कौन से? कर्म, भक्ति, क्या? पंच पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 5वां है भक्ति। हर एक आदमी का, हर एक प्राणी का कहूंगा, लेकिन मनुष्य प्राणी को चूंकि अपॉर्चुनिटी दी है वो इसमें से एस्केप होने की, मनुष्य प्राणी, ये मनुष्य जीवन, मनुष्य ही नहीं, एस्केप क्लॉज है। इस मोह माया के चक्कर से बाहर निकलने का एक रास्ता है वो, अदरवाइज यू आर बाउंडेड विद दैट। सो 5 पुरुषार्थ मैं कहता हूं हमेशा, पर 4 पुरुषार्थ, कर्म, ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एंड 5वां भक्ति। सर्वश्रेष्ठ सुख अगर आपको प्राप्त करना है, पंच पुरुषार्थ है नहीं, सर्वश्रेष्ठ सुख ये अगर प्राप्त करना है तो भक्ति यही 5वां पुरुषार्थ है। और ये ज्ञान हमें इस कथा के माध्यम से मिलता है। कौन सी कथा? एकदा एक पुण्य पट्टन कर, यानी पूना करने वाला, जहां से मैं हूं अभी। एकदा एक पुण्य पट्टन कर, नामे अनंतराव पाटन कर,
साई दर्शनी उपजला आदर आले सत्वर शिर्डीत। अनंतराव पाटनकर नाम के पूना के रहने वाले एक गृहस्थ सदगृहस्थ थे। वो साई दर्शन की इच्छा उनके मन में उदित हुई, जागृत हुई, इसलिए वो फौरन शिरडी में आ गए। वेदांत श्रवण जाहला सकळ, सठिक उपनिषदे वाचिली समूळ, परी तन मानस अक्षयी चंचल, राहीना तळमळ तयांचे। ये बहुत ज्ञानी आदमी था। इन्होंने सब वेदांत यानी सब उपनिषदों का सार पूरा अध्ययन किया था। सब उपनिषद उनके बस एक्सपर्टिज्म हासिल, मैंने एक एक्सपर्टिज्म उन्होंने हासिल की थी, उसमें विशेष प्रवीणता उनमें प्राप्त की थी उन्होंने, लेकिन मन को शांति नहीं थी। मन में खलबली मची रहती थी उसमें, हमेशा स्थैर्यता, स्थिरता जो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी। इसलिए वो अंदर एक असमाधानी हमेशा रहते थे। ज्ञानी थे लेकिन असमाधानी थे। सिर्फ ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, ज्ञानी को भक्ति और सेवा की जोड़ चाहिए। उसके लिए उनको रहा नहीं जाता था कि क्या कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है। सब ग्रंथों का पठन हो गया है, जो रिक्वायर्ड ज्ञान मिलना चाहिए वो सब लिया है, फिर मन की चंचलता क्यों नहीं जाती है? जीवन एक विचारधारा को एक स्थैर्य प्राप्त, स्थिरता क्यों आ नहीं रही है? एक स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है? गीता साई समर्थांचे दर्शन, निवाले पाटणकरांचे नयन, करुणी पायांचे अभिवंदन, यथोक्त पूजन संपादिले। इसलिए वो साई महाराज के पास आए। साई महाराज को देखते ही उनको ऐसा लगा कि दिस इज वेयर आई कैन गेट समथिंग, दिस इज माय फाइनल डेस्टिनेशन। बहुत अच्छा लगा उनको, उनके समाधान हो गया, उनका दृष्टि एकदम स्थिर हो गई, तृप्त हो गए वो, और बाबा के चरण स्पर्श करके उनका जो उचित उपचारों सहित उन्होंने पूजन किया। होनी बद्धांजली, मग होनी बद्धांजली, बैसुनी सन्मुख बाबांचे जवळी, अनंतराव प्रेम समेळी, करुणा बहाली पुसत की। फिर बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बाबा के सामने कहकर बोले, प्रेम भाव से बोले, क्या बोले? करुणा बहाली, अपनी करुणा की याचना की बाबा के पास। क्या याचना की सुनते हैं। बाबा केले विविध ग्रंथ अवलोकन, वेद वेदांग उपनिषद अध्ययन, केले सत्शास्त्र पुराण श्रवण, परी हे निर्विन्न मन कैसे? निर्विन्न मन, परी हे निर्विन्न मन कैसे? यानी इच्छा आकांक्षा, मेरी जो आसक्ति है वो जाती क्यों नहीं है? पर ये कैसे नहीं होता है? मैं पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया हूं, वेद वेदांग वो उपनिषद उसका अध्ययन किया है, पठन किया है, और 6 शास्त्र उसका भी अध्ययन किया है, 18 पुराण वो भी मैंने पढ़ लिए हैं, सब पुराने मैंने पढ़ लिए, लेकिन मेरी ये निर्विन्न अवस्था क्यों नहीं हो रही है? ये मोह माया के जगत की जो आसक्ति है ये क्यों नहीं जा रही है? इच्छा आकांक्षा से परे मुझे अभी होना चाहिए, जो मैंने सब किताबों में पढ़ा है, किताब ये होली स्क्रिप्चर में पढ़ा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है ना? आयुष्यमान भव, यशवंत भव, जयवंत भव। चालू करा तिकडे आणि ते सगळं प्लास्टर वगैरे करा, येतो। सो पाटनकर अनंतराव जी ने बहुत विनम्र भाव से बाबा को कहा, बाबा बहुत ग्रंथ का उपदेश मैंने अध्ययन किया है, सब उपदेश ग्रहण किया है, वेद वेदांग पढ़ के हो गए है, तो श्रुति स्मृति पढ़ रहा हूं, पुराण सब पढ़े हुए हैं, लेकिन मन को विरक्ति नहीं आई है, आसक्ति मेरी कभी खत्म नहीं हुई है, चंचलता मन की वैसी ही है। वाची लेते व्यर्थ गेले, ऐसे जाता वाटू लागले,
अक्षरहीन भावार्थी भले वाटती मजले वाटती चांगले मधुन। मुझे लग रहा है बाबा कि इतना सब अध्ययन पठन वगैरह किया, वो सब फिजूल का है, व्यर्थ है, तथ्यहीन है, उसमें कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो अडानी आदमी है, अज्ञानी आदमी है, जिसको अक्षर बोध नहीं है, एक अक्षर अल्फाबेट उसको लिखने को नहीं आता है, वो मुझसे अच्छा है, बिकॉज ही स्टेबल, उसकी बुद्धि स्थिर तो है, मेरी तो वो भी नहीं है, क्या फायदा। यानी ये ज्यादा पढ़ लिख कर फालतू का बोझ मैंने अपने सर पर बांध रखा है, पाल रखा है मैंने। इससे तो अच्छा है इस अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, वो तो सुखी तो होता है कि नहीं। ज्ञानी नहीं है, अज्ञान है, चलेगा, उसमें तो आदमी सुखी रहता है। वाया गेले ग्रंथावलोकन, वाया शास्त्र परिशीलन, व्यर्थ के हे सकल पुस्तकी ज्ञान, अस्वस्थ मन हे जोवरी। जब तक मन को शांति नहीं है, मन को समाधान नहीं है, तब तक ये ग्रंथ का अभ्यास, शास्त्र का टीकात्मक चर्चा परिसंवाद जो भी है, और शास्त्र का अभ्यास, ये तो ये किताबी ज्ञान जो है, बुकिश नॉलेज, व्यर्थ है। जब तक ये मन स्वस्थ नहीं है, क्या मतलब इसका, क्या फायदा इसका। कायति फूल शास्त्र युत्पत्ति, किमर्थ महावाक्य अनुवृत्ति, जेने न लादे चित्तास शांति, ब्रह्म संविति काशाची। ब्रह्म संविति यानी संविति यानी ज्ञान, भंडार, ब्रह्म का भंडार यानी ब्रह्म ज्ञान। वो काशाची यानी कैसी, कहा, किस काम की और कहाँ है वो। शास्त्र उत्पत्ति, शास्त्र का ये ज्ञान है, शास्त्रों से भरा हुआ ज्ञान है, वो तो फिजूल का हो गया। हर एक जो वेदांग है, वेद वेदांग, वो जो 4 वेद की 4 महावाक्य है ना, 4 वाक्य, 4 वेदों के 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं, अज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म, हर एक का एक एक है, हमने उसका पहले पठन किया है। ये जो हर एक वेदों का एक ब्रह्म वाक्य है, महावाक्य है, उसका जिसका ध्यान और तप करने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान मिलने का कोई चांस नहीं। ब्रह्म ज्ञान कब होगा, तब मन को शांति मिलेगी, तब तो क्या फायदा है ना। हाँ, सर्व शास्त्र, ये सब जो शास्त्र का अभ्यास है, वेद महावाक्य का जप है, ये सब तो फिजूल का हो गया, व्यर्थ साबित हुआ। जिस अभ्यास की वजह से चित्त को स्थैर्य प्राप्त नहीं होता है, शाश्वत अनुभूति जन्य ज्ञान नहीं मिलता है, ये ऐसे किताबी ज्ञान क्या काम का। बहुत अच्छा, हमें भी ये सीख मिल रही है। कर्णोपकरणी परिशीली वार्ता, साई दर्शने निवारे चिंता, विनोद गोष्ठी करिता वार्ता करिता, सहज सत्पथा लावी तेरे। इसलिए महाराज, मैंने आपके बारे में सुना, कान पर बात है कि आप साई महाराज के दर्शन को जाओ, सिर्फ दर्शन मात्र से आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपकी चंचल वृत्ति खत्म हो जाएगी। वो बाबा तो ऐसे है कि सहज ठट्टा विनोद मस्करी के माध्यम से ही आपको ज्ञान दे जाते हैं, और सहज भाव से आपको यानी सन्मार्ग पर लगा देते हैं, आपके मन को स्थिर कर देते हैं, और आपको जीवन का इच्छित मार्ग, जो उद्देश्य है, वो आपको, वो खुद अपने हाथ को पकड़ के आपको वो मार्ग पर लगा देते हैं। इसलिए आपकी कीर्ति हमने सुनी, और आपके दर्शन के लिए आया हूं प्रभु। मनोनी महाराज तपोराशी, पातलो आपल्या पायापाशी, येईल स्थैर्य माझिया मनाशी, आशीर्वचनाशी ऐसा द्या। इसलिए हे तपोराशी महाराज, हे तप के भंडार कि भंडारों के भंडार जिनके पास है, महाराज मैं आपके चरणों में आया हूं। इसीलिए आप मेरे मन को स्थैर्य देना, मन को स्थिरता देना। ये चंचल मन है,
इसको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे देना प्रभु, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए प्रभु, उसके लिए मैं आया हूं। ऐसी भावना लेकर आप बाबा के पास जाओगे ना, डेफिनेटली देते हैं। हम तो बस लिस्ट लेके जाते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी औरत, अच्छी बीवी, अच्छा जवाई, सब कुछ इसके लिए जाते हैं। ये आदमी मन की शांति के लिए गया है, अनंतराव पाटनकर। तब महाराज ने उनको क्या कहा, साई भगवान, वो सुनिए। तब महाराज झाले कथिते, एका विनोद पर आख्यायिके ते, जेने अनंतराव समाधानाते पावले साफल्य ते ज्ञानाचा। तब महाराज उनको कहने लगे, एक विनोदपूर्ण, विनोद से भरा हुआ, लाइटली लगता होगा ऐसे एक कथानक, एक आख्यायिका, एक छोटा सा चुटकुला बाबा अनंतराव के समाधान की खातिर, करने के खातिर उन्होंने, बाबा ने वो चुटकुला बोला। बाबा ने वो एक आख्यायिका, रूपकात्मक कथा है, वो सिंबॉलिक कथा है, वो बोली, जिसकी वजह से अनंतराव को अपने मन को शांति मिली, अपने मन को स्थिरता मिली। एक छोटा सा, एक छोटी सी कथा है, रूपकात्मक सिंबॉलिक कथा है, पैराबोलिक लैंग्वेज है उसमें। वो जो है वो मिलता ही क्या हुआ, जेने अनंतराव समाधानाते पावले साफल्य ते ध्यानाचा। उनके ज्ञान की सफलता तब हुई जब उन्होंने ये सुना, जब ये कथा को उन्होंने सुना, ये कथा जब सुनी उन्होंने, तब उनको ज्ञान का सही मतलब, ज्ञान का सही अर्थ समझ में आ गया। ती अल्पाक्षर परमसार, कथा कथितो हुआ श्रवण तत्पर, विनोद परी तो बोध पर, कौन अनादर करिल। वही कथा मैं आपको कहने जा रहा हूं अभी। वो कथा क्या कहती है, परम सार है लेकिन अल्पाक्षर, बहुत बड़ा गहन अर्थ उसमें भरा हुआ है, लेकिन चंद शब्दों में कही गई है। वो मैं कहने जा रहा हूं, आप ध्यान से लक्ष्य देकर आप सुनिएगा, आपका पूरा मन केंद्रित करो जगह और सुनिए। वो विनोद लगता है आपको, महज एक विनोद ऐसा लगता होगा, लेकिन नहीं, वो बोध उसमें बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है। उसका अनादर कौन करेगा? देख लीजिए क्या कथा है वो। तो बाबा अनंतराव जी को बोलने लगे, बाबा देत प्रत्युत्तर, एकदा एक आला सौदागर, तेव्हा एक घोडे समोर घाली लेंढार नवाचे। ऐसा हुआ, अनंतराव जी बाबा कहने लगे, एक बार एक सौदागर आया। सौदागर यानी नॉर्मली सौदा करने वाला, लेकिन ज्यादातर ये जो कहा जाता है सौदागर यानी घोड़े के व्यापारी, घोड़े के व्यवहार करने वाले, बेचने खरीदने के व्यवहार करने वाले, उसको सौदागर बोलते हैं। तो जब वो सौदागर सामने आया, तेव्हा एक घोड़े से बोला, तो उसके सामने एक घोड़ा था, हॉर्स, घाली लेंडाचे, लेंडार नावाचे। उसने जो स्टूल है, घोड़े का स्टूल मालूम है आपका, जैसे वो पेंडा जैसा होता है, पेंडे जैसा होता है वो, सेमी एकदम सॉलिड ही होता है, सेमी सॉलिड नहीं, सॉलिड होता है वो, सॉलिड। उसके अलग 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 पार्ट निकल जाते, जब भी वो उसको डिस्चार्ज होता है उसका, तो एक 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 छोटा ऐसे ऐसे गिरते रहता है। तो उसने, वो लेंडी बोलते हैं उसको, नवाचे लेंडार, यानी उसने 9 लेंडी डाल दी, 9 स्टूल, सॉलिड स्टूल की 9 डाल दी उसने। बाबा ने बस इतना ही कहा। एक बार एक सौदागर आया, सामने एक घोड़ा खड़ा था, वो हॉर्स खड़ा था, उसने 9 लेंडी डाल दी, 9 सॉलिड स्टूल के पार्ट डाल दिया उसने। सौदागर निज कार्य तत्पर, लेंडिया पडिता पसरला पदर,
बांधून घेता घट्ट त्या समग्र, चित्त एकाग्र लादला। अरे वो सौदागर ने क्या किया, जैसे वो घोड़ा वो लेडी डाल रहा था अपने शरीर के बाहर, इसने इमीडिएटली अपना पल्लू ले लिया और उसके पीछे खड़ा रह गया, और वो सब ले लिया, नीचे न गिराते हुए अपने पल्लू में बांध लिया उसमें, और बांध के अपने पास रख लिया, को बांध लिया उसने ऐसा, और अपने पास लिया, अपने नजदीक रखा उसको। वो सौदागर बहुत ही होशियार था, उसने देखा कि एक नौ का लीडर गिर रहा है, घोड़ा दे रहा है, तो इसने इमीडिएटली न गिराते हुए ये प्रसाद मान के, कुछ भी मान के उसको ले लिया, और बांध के ले लिया, क्योंकि ये अपने हित में है, उसको मालूम था। जैसे उसने वो ले लिया, चित्त एकाग्र राधेला, वो स्टेबलाइज हो गया, उसका माइंड शांत हो गया, क्योंकि नौ की लेंडार मिल गया उसको, वो 9 टूल्स के पार्ट उसको मिल गए, ले लिया, है कि नहीं, उसको वो 9 के पार्ट मिले। हे काय बदले साई समर्थ, काय असावा किंमतीतार्थ, लेंडिया संग्रही सौदागर किमर्थ, काहीही अर्थ कळेना। अब साई भगवान ये क्या बोले, ये साई भगवान ने ये जो पैराबोलिक गूढ़ रहस्यमय बोली में जो मुझे कहा, घोड़ा क्या आया, उसने वो स्टूल्स डिस्चार्ज हो रहा था, वो सौदागर इमीडिएटली गया और उसने 9 का लेंडार उसमें डाल दिया, वो 9 का, और उसने वो सौदागर इमीडिएटली, ही वॉज वेरी अलर्ट, उसने गया, वो नीचे गिरने नहीं दिया, उसने इमीडिएटली अपने पल्लू में उसको बांध लिया और वो अपने पास रखा, और उससे उसको स्टेबिलिटी मिली। क्या है ये, इसका अर्थ क्या हो सकता है? लेंडिया, वो सौदागर अपने हाथ में वो बांध के अपने पास रखता है, कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा था अनंतराव जी को। ऐसा सोच रहे थे भी क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, कौन बताएगा मुझे इसका अर्थ। ऐसा विचार करीत करीत अनंतराव माघारा येत, कथिले संभाषण इत्थंभूत, केळकरा प्रततयाने। बाबा ने ये जो बात बोली, ये जो रहस्यमय बोली में जो बात बोली, उनके पल्ले में नहीं पड़ी, वो अपने हरिविनायक साठे के श्वशुर, इनका नाम गणेश दामोदर केळकर था, वहीं रहते थे बाबा के पास, दादा केळकर के नाम पे, या दादा भट्ट भी बोलते थे उनको, दादा भट्ट, दादा केळकर, हरिविनायक साठे इनके वे फादर इन लॉ। उनकी लड़की जो ब्याही गई थी, बाबा के आदेश पर ही उन्होंने वो शादी की थी, अपने बहुत यानी 48-50 साल की उम्र में उन्होंने वो शादी की थी। तो ये जो केलकर के पास अनंतराव गए, उन्होंने बोला कि बाबा ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, क्या अर्थ हो सकता है इसका। तो उन्होंने दादा को जब बोला, तो बोले कि यार ये सब, ये जो कहानी बाबा ने बताई छोटी सी है, अल्पाक्षरी है, बहुत कम शब्दों में है, लेकिन इसमें वो सौदागर कौन है, वो लेंडी, उसने वो सब जो टूल्स है वो डिस्चार्ज किया, वो कैसे लिया, 9 क्यों होती थी, वो 9 का क्या कारण है, जरा थोड़ा सा मुझे विस्तार से समझाएंगे। दादा आप तो बाबा के नजदीकी भक्त हो, बाबा के कहने का मतितार्थ आप समझते हो, उसका उचित अन्वयार्थ लगाकर राइट इंटरप्रिटेशन करके मुझे बता सकते हो इसका, ये क्या है क्या। दादा हे काय आहे कोडे, मी अल्प बुद्धी मदनी हे ते न उलगडे, होईल बाबांचे हृदय उघडे ऐसे रोकडे मत कथा। दादा, केलकर दादा को अनंतराव पाटण कह रहे, ये है क्या है पहेली, मेरे अल्प बुद्धि को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ग्रास्पिंग कैपेसिटी के बाहर है, ये ज्ञानी है, 6 शास्त्र 18 पुराण वेद वेदांग सब पढ़े हुए हैं, क्या कह रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बाबा के दिल में क्या है, मुझे क्या जताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हैं, ये जरा थोड़ा सा खुलकर बताएंगे आप। तो दादा ने बोला, दादा केळकर जी ने, बूढ़े आदमी थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन,
दादा उदती मज हे न कळे, ऐसेच बाबांचे भाषण सगळे, परी तयांच्याच स्फूर्तीच्या बळे, कथितो आकळे ते मज. हाँ, ये भावना चाहिए जब आप बात करते हैं। मैं बहुत बड़ा महाज्ञानी हूँ, ये है, मुझे सब कुछ आता है, ये आता है और मैं बताता हूँ, ऐसे झाड़ना बराबर नहीं है। तो दादा बोले यार मेरी भी समझ में नहीं आता है। बाबा का ये पूरा भाषण है, पूरा जो उन्होंने आपको कहा, पूरा तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा ने मुझे जो स्फूर्ति दी है आपको बताने की, इसका मतितार्थ अन्वयार्थ बताने की, उचित अर्थ बताने की, मुझे जितना समझ में आया है उतना मैं आपको कह रहा हूं। जितना मुझे समझ में आ गया, मेरे बुद्धि के कक्षा में जितने आ गए, उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। वो घोड़ा कौन है? कृपा ईश्वरी ते हे घोडे, हे तो नवविधा भक्तींचे कोडे, विना भक्ती न परमेश्वर जोडे, ज्ञानान आतुडे एकल्या. हा, आप ये पढ़ के ये इसको समझ लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बना दीजिए इसको। कृपा ईश्वरी ते हे घोड़े, ये घोड़ा कौन था? ये हॉर्स कौन था? वो सौदागर के सामने। सौदागर तो एक मुमुक्षु जीव है, अध्यात्म मार्ग चलने वाला एक पिपासु है, एक यानी उसको ज्ञान ग्रहण करने की आशा है, इच्छा है उसकी, उसको परमार्थ मार्ग में कुछ हासिल करने का उद्देश्य है उसके जीवन का, लेकिन उनको सही मार्ग नहीं मिल रहा है। वो जो है, वो जो भक्तगण है उसको मुमुक्षु जीव बोलते हैं। वो मुमुक्षु यानी उसको ईश्वरी कृपा जब तक नहीं होती तब को आपको मार्ग मिलता भी नहीं। तो ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, ये ईश्वरी कृपा समझ ले। और उसने नौका लेंडा डाला है ईश्वर की कृपा से, नौ लेंडिया, वो बोले इसका मतलब हुआ नवविधा भक्ति। कौन सी है वो नवविधा भक्ति? पहले बहुत बार सुने हमने, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, अर्चन पूजन पाद संवाहन, तीन तीन तीन। पहली कौन सी? श्रवण मरण श्रवण मनन या कीर्तन, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, अर्चन पूजन पाद संवाहन, आणि आखिरी की जो तीन है वो हायर लेवल की है, वो है दास सख्य आत्मनिवेदन। ये जो नवविधा भक्ति है, 9 स्टेप्स है, एंड देयर इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं आप। डायरेक्ट नवी भक्ति नहीं मिलती है, यू हैव टू गो थ्रू, स्टार्ट फ्रॉम श्रवण भक्ति, देन कीर्तन भक्ति, जो हमने सुना है दूसरों को बताओ, फिर स्मरण यानी फिर उसको सेल्फ रियलाइजेशन करो, जब तक ध्यान करो, आगे ऐसे अलग 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 एक स्टेप तक। आखिरी में है आत्मनिवेदन, अपना अस्तित्व परमेश्वर के अस्तित्व में विलीन कर देना, परमेश्वर का एक हिस्सा बन के रह जाना, इमर्ज होना भगवान के अस्तित्व में, यानी खुद भगवान बन जाना। दैट इज द स्टेप नवविधा भक्ति। वैसे भक्ति के 27 प्रकार है बेटा, आचार्य नारद मुनि ने 27 जो है उसमें से श्रेष्ठ स्थितम जो नव भक्ति है आध्यात्म मार्गियों के लिए, गृहस्थ मार्गियों के लिए, कलयुग में जो आसान 9 तरीके बताए हैं, ये नवविधा भक्ति है। क्या कहती है? जब तक के ये घोड़ा यानी ईश्वरी कृपा आपको नवविधा भक्ति तब तक नहीं देता है, और आप उसको इमीडिएटली वो अपॉर्चुनिटी ग्रास करके नहीं लेते हो, तब तक बिना भक्ति न परमेश्वर जोड़े, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा परमेश्वर जो है वो नवविधा भक्ति के माध्यम से ही मिलता है। ज्ञानान आतुरे एकल्या, सिर्फ आप ज्ञानी है करके आपको नहीं मिलने वाला। ज्ञान को जब भक्ति की जोड़ मिलती है, ज्ञान को जब भक्ति की साथ मिलती है, तब ईश्वरी कृपा होती है, और नवविधा भक्ति के माध्यम से आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। है सो सिर्फ किताबी ज्ञान
से नहीं होगा। आजकल तो सोशल मीडिया में तो मैं बहुत सारा देखता हूं, ऐसे झाड़ते हैं सब लोग, और ऐसे ऐसे एक 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 महाभाग है। भक्ति रहेगी बाजू में, लेकिन बाबा ने वो यहाँ जो उनका फटा हुआ था उसमें कितने 20 धागे थे कि 25 धागे थे लटक रहे थे, उसको कितने सुई लगाई थी, बाबा के नाखून कितने इंच बड़े हुए थे, बाबा के कितने बाल थे ये बाजू में और ये बाजू में, ये डिटेल में जाता है। उचित ज्ञान लेने तक ठीक है, ये प्रिजर्व करना भी अच्छा है, बिकॉज उसके माध्यम से कुछ हमें नए क्लूज मिलते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। डिटेल में जाना, बाबा की पादुका का कौन सा बंद टूटा हुआ था, उसको कितना सिलाया, कितना इंच लंबा और कितना इंच जूना, क्या है ये? आपके ज्ञान को जब तक भक्ति नहीं मिलती वो तब तक वो टेक्निकल नॉलेज बन के रह जाता है। बहुत सारे व्हाट्सएप विद्वान, व्हाट्सएप स्कॉलर अभी पैदा हुए हैं, ऐसा एक एक झाड़ते रहते हैं। उनके वैयक्तिक आयुष्य में उनको मैं देखता हूं, क्या है, पूरे लालच और लोभ मुझसे भरे हुए हैं, लेकिन बस एक वेव आती है और ऐसा पंडित, ऐसा सॉलिड, ऐसा ऐसा नॉलेज देते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान, ओहो बाबा, इसेंस ऑफ व्हाट, ये जो मूवी का इसेंस क्या है, ज्ञान जो मिलता है, ज्ञानानंद आतुड़े कल्या, आपको नवविधा भक्ति के माध्यम से परमेश्वर की प्राप्ति करनी। आपका उद्देश्य क्या है? बाबा ने जो छोला पहना है उसके धागे गिनने में है कि बाबा की शिक्षा लेने में है? थिंक अप टू व्हाट यू वांट टू गो। दिया है आगे, आगे जो स्टैंजा है, नवविधा भक्ति दी है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण चरण सेवन अर्चन वंदन दास सख्य आत्मनिवेदन भक्ति हे दान नवविधा। कौन सी भक्ति है? ये नवविधा भक्ति है। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पूजन पाद संवाहन यानी चरण सेवा, चरण सेवन यानी सेवा, दास सख्य आत्मनिवेदन या ये वो नवविधा भक्ति है। और ये भक्ति के नव माध्यम है, साधन है परमेश्वर प्राप्ति के। और ये कैसी मिलेगी आपको? पूर्ण भाव ठेवणी अंतरी, यातून एकची जरी घडली तरी, यातून एकची जरी घडली तरी, भावाचा भुकेला श्री हरी प्रकटेल घरीच भक्ताच्या। हाँ, इस नवविधा भक्ति में एक भक्ति परिपूर्णता से अगर आपको प्राप्त हुई, एक भक्ति अगर आपके हाथ से घटित हुई, आप भक्त कहलाने के लायक हो गए, तो भाव का भूखा हुआ वह श्री हरि भगवान साईनाथ आपके घर में खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। आपके घर में वो सामने आके खड़े रहेंगे। बहुत सारे भक्त तो इसकी अनुभूति लेते हैं। ये तो बाबा का अकारण कारुण्य है। अकारण कारुण्य, आपके ऊपर जो मर्सी दया दिखाते हैं उसको बिना बेवजह का प्रसन्न होना। मैं तो कहता हूं बेवजह का प्रसन्न, हम उसके लायक ही नहीं है। भक्ति करना है नहीं, क्या करना है इसका अर्थ हमें अब तक मालूम नहीं है, फिर भी वो बेचारा बूढ़ा वहां आपको हमारे ऊपर सब दया बरसाता है, क्योंकि वो भाव का भूखा है, उसको भाव चाहिए। भाव यानी मोल तोल नहीं, भक्ति भाव। ये नवविधा भक्ति में से एक भक्ति अगर वो आप फलीभूत हुई आपकी और बाबा की कृपा हुई, मानो आपको परमेश्वर की प्राप्ति हुई। इंग्लिश वर्जन देखते हैं।
Sai Bhagwan told Sri Vinayak Thakur, whatever Appa Maharaj has told is true, but it should be followed by action, then your job will be performed. You will get whatever you want in your spiritual life. To study Vichar Sagar of Saint Nischal Das was ordered at Vadgaon. After repeatedly reading for some time, I was told to think, contemplate, and follow it. And it was ordered at Shirdi. Firstly, one should read the book, then think over it. After repeatedly reading the study, contemplation is completed. By reading a book, the job is not completed. It has to come in practice, otherwise it is useless totally. Without the blessings of realized person and realizing it through own experience, the reading of book is worthless. What is the use of bookish knowledge? Let us listen to a small story emphasizing this treatment. The devotion in real sense and process of getting ultimate happiness is essential. Devotion itself is a process. You will get this knowledge after understanding the essence of the story. Once Anantarao Patankar from Pune desired to see Sainath and rushed to Shirdi. He had studied Vedanta and Upanishads with commentary. Still, he was unstable and could not stop yarning. He was satisfied on seeing Sai Bhagwant. With this satisfaction, he worshipped him as per the tradition. Then he sat before him and folded hands and affectionately asked him. Patankar told Baba, Baba, I have studied number of books, Vedanga, spiritual books, spiritual scriptures, but my mind is not getting detached. My attachments are not over. I think whatever I have studied was worthless. The uneducated who does not read anything are better than me. I have this feeling of unstable mind. With unstable mind. This reading of spiritual book is wastage. I have firmly felt like this. The study of books which does not calm the mind and gives steadiness is useless. Hai na, Baba? The study of spiritual books, recitation of great sentences from Vedas is useless. What is the use of this bookish knowledge which does not give steadiness and self-realizing experiences? Kindly give your advice through small stories and show spiritual path for liberation. Baba, please, I beg you. Oh, Sai Mahant, I heard your greatness. I heard all our worries are dissolved in seeing you. Your advice through small stories will show us spiritual path for liberation. So I have come to your feet after infinite penance. I have surrendered to you. You calm down my mind and bless me with nectar of your advice. Hence, Sai Baba told story in the form of joke, a lighter way. On listening to this story, Anantarao got satisfied of his knowledge. He got mental stability. Now, I would tell you the story explaining devotion and essence of life. You may enjoy jokes while listening, but how can you neglect nectar of advice? Baba replied, once a businessman came. There was a horse before him. Horse dropped 9 lumps of dung. The businessman was very attentive and alert to his work. When the horse was dropping lumps of dung, he collected them and tied in the cloth, worn loosely over the shoulders by men. Normally, वो जो ऊपर ना होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, पंचा बोलते हैं उसको. With this, his mind calmed down. ये उसने ले लिया वो 9 dung part, you can say. What Sai Samartha has told, what is the meaning of what Sai Samartha has told? What is the meaning of it?
how the businessman will collect lumps of dung. Nobody could understand the meaning of this telling. Anandrao returned from Masjid thinking over Baba's talk. He told it to Kelkar in details. Anandrao told Kelkar Dada, who is that businessman in the story? What is the purpose of lumps of dungs? Why the dungs were 9 only? Nothing is understood. Please explain me. Anandrao told, Dada, what is the secret meaning in these stories? Person of little intelligence like me cannot understand. Please clarify. Dada said, I have also not understood completely. Baba's talks are always with the secret meaning. So one cannot understand easily, but with his blessings, whatever I have understood so far, I shall tell you. Blessings of God is the horse. Baba is telling the 9 steps of devotion. Without devotion, one cannot reach God. And by acquiring knowledge, one cannot relate to the God. So, Gyan ke baad bhakti. You got the adequate knowledge to understand the God, and with the devotion, bhakti, आपको उसको प्राप्त करना है. Listening, singing songs for God, remembrance, waving of lamp, worship, service to the feet of God, service, companionship, or compassion, self-confession are 9 ways of devotion, and this is the path of devotion. Even if one out of these 9 methods is performed with love, the God will express his devotee's house. He will appear in his devotee's house. God is hungry of love. Recitation, penance, dedication, yoga, study of Vedas, the deep knowledge of spiritual theories, and to deliver lectures on spiritualism are fruitless without devotion. All other methods are useless without devotion. I think we should conclude. We have completed up to 96. And the deep root meaning, a powerful instrument, a powerful means, we got it today. So, बिना ज्ञान के भक्ति और बिना भक्ति के ज्ञान का अर्थ नहीं, ये आप समझ लीजिएगा. And there are certain messages, please read it. Bhavi, extension of bhakti, and third is really a way towards God, way towards emerging into God. Dasya bhakti. आप वो मुक्ति पढ़ते हो, भक्ति 4 मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, देखा है ना आपने? सामिप्य, सारोक्य, सारूप्य और सायुज्य. पहली स्टेप कौन सी है? पहली स्टेप है भगवान के सामीप्य जाना, भगवान के साथ बकना, भगवान का सहवास प्राप्त कर लेना. दूसरा जो है सालोक्य, भगवान का जितनी भी सीख है वो अपने स्वीकार करना और उसके हिसाब से हमारा बर्ताव रखना. लोग कहना चालू कर देते हैं, अरे भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाला अच्छा पुरुष है. सालोक्य, भगवान के जैसा दिखने लगना. सारूप्य, भगवान का स्वरूप स्वीकार होता है, वो आदमी भगवान बन जाता है, वो आदमी भगवान स्वरूप होता है. अरे देवानस है, देव आदमी है, गॉडली पर्सन हम बोलते हैं. एंड फोर्थली जो होता है सायुज्य, भगवान के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व इमर्ज कर देना, यानी भगवान बन के रह जाना. उस वक्त अपनी उन्होंने अवस्था हो जाती है, खुद का अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस का कुछ माने ही नहीं रखता है. Whether it is there or not doesn't make anything. It doesn't make any difference. यही जो 4 मुक्ति है, ये लास्ट के 3 जो है दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन. दास्य यानी भगवान का दास बन के रहो,
भगवान का सेवक बन के रहो, भगवान का सखा, भगवान का दास बन के रहो, सखा बन के, सख्य, भगवान का सखा बन के रहो। कृष्ण अर्जुन सखा था, है ना। दास, जैसे भक्त प्रहलाद है, भगवान का दास बन के रहिए। मीरा भगवान की दास बन के रहिए। गौरांग चैतन्य प्रभु भगवान के दास बनकर रहिए। अर्जुन साई सचरित में श्यामा, कृष्णा में सुदामा, सखा, वो सखा बन के रहना और आखिरी में खुद ही कृष्ण बन जाना, खुद ही साई बन जाना, अपना अस्तित्व भगवान के अस्तित्व में मिटा देना। दैट इज आत्मनिवेदन, खुद को धो देना। यानी फिजिकली इट्स नॉट इन योर, वो आपको तो अपना फिजिकली वेदर यू आर लाइव और नॉट, यू आर ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग, वो आपको पता भी नहीं रहता है उस वक्त। वो अवस्था अलग होती है, तुरीय अवस्था उसको बोलते हैं। These are the three, and this is the final achievement is Atmanivedan. You got it? What is his name? Sucheta. You got it? The Samana. It is written this one. अर्चन, भगवान की अर्चना करो, पूजन करो, पाद यानी उनकी सेवा करो। पाद समान इनके भगवान के सेवा कार्य में अपने को लगा के रखो, सेवा करते रहो। बाय द वे, हु इज, मेरे एक असाइनमेंट देना है क्या? कंक्लूडिंग Yeah, actually, really enjoyable, huh? No, I wanted to only add, you gave a lot of examples like Krishna, Arjuna, etc. So I wanted to only add, like Baba and Abdul. You know, Abdul was Baba's real sevekari. Yeah, Das Bhakti. Yeah. Das Bhakti. So, yes. Jyotindra Tarkad Sakhya Bhakti. This is Das Bhakti. Okay? And Krishna, Radha Krishna hi Atmanivedan. See. Yeah, Abdul Baba Sevekari. Abdul Baba comes into say this one. Dash Archana Pujana Pada Samana. He comes into 6th stage. Seventh stage, भगवान का बन के रहो, वीरेंद्र अपना ज्योतिन्द्र तरखड़, यस भगवान का बन के रहो, श्यामा भगवान का बन के रखो, भगवान का सखा बन के रहो. Then the last one is Radha Krishna. Radha Krishna is last, emerging herself into Baba's अस्तित्व में कर देंगे. So you are rightly said. Thank you very much. Thank you.